बाबे इंडस्ट्री से उठ के आ गए, हम पूरी जिंदगी इनको बुरा भला कहते रहे, मतलब हमने रेवोल्यूशनरी बनाया ना कि यार हम ये नहीं है, हम डिफरेंट है, अब हम भी वही होने जा रहे हैं, तो मतलब व्हाई आर वी डूइंग द सेम थिंग? तो it's all any process and journeys that you learn. Yeah, exactly. And both. And the best leaders, they realize, that now is the time for change or growth, right? So either you change yourself or grow yourself, or you let others, जिस तरह आप कह रहे हैं, बाबू को replace करके young blood लेकर आए. Assalamu alaikum everyone, I hope you're doing well. आज की मजलिस is something that I was personally looking forward to, क्योंकि very few people that you learn from, and और अभी जिस तरह के मतलब the things that I'm evolving into, I think खुर्रम ज़फ़र का होना और आपका एग्जिस्टेंस, अभी मैं 5 मिनट आपसे बात की है, तो so many things that you talked about, and obviously with so much expertise, यानी from क्या कहेंगे, startup world, VC world, being the CEO, academian, लम्स में रहे. If I'm not wrong, तो लम्स Center of Entrepreneurship भी आपने ही start किया. Yeah. I pitched you, by the way, on EduLeaf. It was a startup. I remember that. Oh, you remember that? Yeah, I remember that. Actually, so nobody remembers that, but you do. I do remember that. We had part of the conversation outside of वो जो रोड है जो आती है, Yeah. और चलते हुए गाड़ी के तक चलते हुए तुमने कुछ किया था काफी उसमें. And so अच्छा, आप he was very blunt. मतलब मैं उनको पिच कर रहा हूँ कि EduLeaf, this is एक दफ़ा डॉक्टर सुहेब ने हमें कनेक्ट करवाया, मैं आपको पिच कर रहा हूँ. पिच करते हुए वेबसाइट लोड नहीं हुई, तो मैंने कहा वैसे ये लोड हो जाएगी, और उस टाइम तक मैंने $500,000 का बिजनेस कर लिया हुआ था. ठीक, तो आपने कहा कि अच्छा तो इंजीनियरिंग वीक है आप लोगों की. मैंने कहा मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ भाई से. ठीक है भाई, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी बात, नो BS. I think that's the least we could do for people, क्योंकि लोग आते रहते हैं मशवरे के लिए, एडवाइस के लिए, and I think the least that we can do is not sugarcoat things. क्योंकि good entrepreneurs, they have it in them to sort of peel off that sugarcoating and get straight to the advice. मेरे अक्सर लोग कहते हैं कि जब मैं कोई इंटरव्यू कर रहा होता हूँ या कोई सिलेक्शन प्रोसेस या कोई जजिंग वजिंग कर रहा होता हूँ, तो a lot of people say कि you're too harsh on people. You are. मैं समझता हूँ कि but that's by design. क्योंकि entrepreneurship requires that you be able to take harsh feedback. You'll be able to listen. You'll be able to peel the layers and find out exactly what somebody is saying, or what your customer is saying, or what your investor is saying, what your employee is saying, and then act on it, right? तो अगर हम बहुत सारी शुगर कोटिंग करें तो कभी कभार जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मैसेज नहीं उनको मिलता. तो I don't think there's anything wrong with it. I think if anything, if an entrepreneur listens to harsh feedback, get discouraged, they shouldn't be entrepreneurs. Right. And if you're resilient, if you have a tough skin, harsh feedback is not going to tell you anything. It's not going to deter you. So sometimes I tell people, यार तुम नहीं बन सकते, कारोबार नहीं बन सकते, जाके नौकरी करो. उसमें भी दोनों फायदे होते हैं. अगर तो आप सुन लेते हो, जाके नौकरी करते हो, you weren't cut out to be an entrepreneur, or somebody who could scale a business to heights. और अगर आप if you are cut out to be an entrepreneur, वो आपके ऊपर से गुजर जाएगी. You won't give it any two hoots about it. Yeah, so I've heard this somewhere. Okay, if you're asking this question that am I an entrepreneur or not, so the answer is that you're not an entrepreneur. Yeah, exactly. Why would you ask this? Absolutely. So entrepreneurship or marrying somebody में ये common है. If you're asking it, it's the right fit. So the answer is no, it's not the right fit. Why are you asking it? Absolutely. Yeah. So अच्छा, मैं आपकी तकरीबन जितनी भी पॉडकास्ट आती हैं उसको फॉलो करता हूँ. उतना स्टॉक नहीं करता हमारी आपको स्टॉक करती है, लेकिन मैं जितना भी स्टॉक करता हूँ उसमें I've seen you go through many different decisions, many different job switches, and in terms of industry switches, but I never understood the thought behind it. So if you don't mind, if we go through that thought, कि आपने why did you join Lum Center of Entrepreneurship? यार मैं बोर बड़ी जल्दी हो जाता हूँ. अच्छा. That's the honest truth about things. Okay. I find that दो तरह के लोग होते हैं. एक वो लोग होते हैं जो chaos से कोई चीज़ create करते हैं and they get a kick out of that.
And then there's a second category of people or entrepreneurs who take something that has been, gotten to that stage, and then they are good at scaling it up and growing it. So I think shuru mein to definitely I was the kind of person who would enjoy building things. वो एक इंडस्ट्री में हो या ना हो, it wouldn't matter. मैंने ज़मींदारा भी किया है. मैंने अगर स्टार्ट से देखूं अपने करियर के, तो मैंने वो कैंचे वाली सोडा भी बेचा हुआ है. मून मार्केट में सामने स्टॉल लगा के वहाँ से स्टार्ट किया था. I've done product, I've done services, I've switched industries, I've been in academia. शायरी भी करता हूँ, मैजिक भी सीखता हूँ, हर चीज. जो जब मैजिक जो करता हूँ, you said मैजिक सीखता हूँ, स्लाइट ऑफ हैंड, इस तरह. अच्छा, स्लाइट ऑफ. अच्छा, मैंने कहा शायद वो जादू तो नबू बाबे कदमों में. मैंने कहा फिर एक और कन्वर्सेशन है. I get a kick out of learning new things. I think if I were to describe myself, it'd be a learner, lifelong learner. अभी आपने मुझे ऑफ द कैमरा एक एडवाइस की कि I should have a board member. Yeah. So that I can show to the investors that they're not investing on somebody जो mood swings के साथ चलता है. Yeah. Right? And now you're saying that you are getting bored in the business where you are actually handling with people's money. Yeah. How is that safe? Why would people give you money if you just get bored? So VC, अगर आप venture capital की बात कर रहे हैं, if I presume that's where people give me money. Yeah. So venture capital is a very limited period game. A fund is typically 5 years of investment, 5 years of harvest. 10 साल के अंदर आप जो भी आपने करना होता है, जो गुड़ दिखाने होते हैं, दिखा के आप बंद कर देते हैं. I think many investors would continue with the fund 2 and fund 3 and fund 4. मुझे VC में मज़ा इसलिए आया था कि आपकी जो learning की thirst है ना, उससे satisfy होती रहती है. Because every new deal you're pursuing, everybody who's pitching to you, you're learning from that. Every company you're investing in, you're learning from that. So वो आपकी thirst quench होती रहती है उससे. So I was hoping कि VC is something that I could do for the rest of my life. And I tried to create a second fund. हमारा first fund invest हुआ. Typically First fund कितना था आपने? 10 million. 10 million. हाँ, ये वाली न्यूज़. लेकिन आपको 2016 के अंदर क्रिएट किया था. 2016 में if you look at पाकिस्तानी इकोसिस्टम, Wow. I thought कि 10 मिलियन डॉलर से ख़त्म ही नहीं हो गया, पता नहीं इन्वेस्ट कहाँ करूँगा. But then what happened 3-4 years down the road, a lot of money started coming in, and then COVID के अंदर जब fixed income के rates effective yields negative हुई, so there was a lot of money that started chasing higher risk assets. So a lot of money flew into Pakistan as well. तो फिर तो game change हो गई. A lot of funds got created. And it stopped because of airlift? What? This money was flowing in, it's still flowing in? No, it has nothing to do with airlift. I think it was a time-bound phenomena. ठीक है. जब आपके so the money जो fund managers होते हैं, money managers होते हैं, they have a portfolio that they invest across, right? So generally you have an allocation for fixed income, you would have allocation for commodities, you'll have allocation for equity, private equity, VC. So जब आपके fixed income returns negative हो, जैसे यूरोप में negative yields आ गई थी, so people tend to take that money and try to find risk on assets जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा risk ले लें, लेकिन hopefully थोड़ा return बेहतर हो उसका. So that caused a lot of money to look for new geographies, and Pakistan was a beneficiary of that. We had a good story to tell. When somebody does a macro analysis of the world, Pakistan is पांचवी छठी बड़ा country, and there's a lot of lessons or businesses or business models that people can take from larger economies applied to Pakistan. वो बात की बात है कि जब पाकिस्तान में आते हैं आपको समझ आता है कि ये तो एक नई चीज़ है, नई मार्केट है. यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का माइंडसेट चाहिए, डिफरेंट किस्म के मैकेनिक्स चाहिए बिजनेस के, डिफरेंट किस्म के लोग चाहिए. And people who understand that will succeed, and people who don't will go belly up. और हमने देखा है बहुत सारी startups have gone belly up. I think वो जो indiscriminate race for growth at any cost, that model I don't think is going to work in Pakistan, or at least not right now. इस पे
हाँ श्योर. हाँ ओके, ये क्या बात आप कर रहे हैं? think मैं कह रहा हूँ एक माइंडसेट आया था जब पैसे आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. राइट So CEOs or boards or investors they somehow say कि okay keep growing. ठीक. चूंकि अमेरिका में वो सबको अमेजोन का एग्जांपल पता है कि वो Right. ग्रोथ करते नो मैटर करते व्हाट करके. कॉस्ट 10 साल बाद प्रॉफिटेबल हो जाएंगे. Yeah. कोई बात नहीं. Yeah. But what they don't realize is in order to fuel that kind of growth you need a lot of capital. Right? Yeah. और हमारे मुल्क के अंदर कैपिटल नहीं है. ये जो 2 साल हुआ इसमें $650-700 मिलियन पाकिस्तान के अंदर आया. That was a blip. Yeah. एंड जब वो फिनोमेना ख़त्म हुआ तो वी आर बैक टू नॉर्मल जो पैसा आता था. Right. Even most of the money that is being invested in VC today is foreign capital. A fraction of the money that goes into Pakistani startups is actually local capital, right? Institutional local capital, family offices ka capital. So we are still reliant on money outside of Pakistan. And when the money is outside of Pakistan, then investors have a choice to invest in Pakistan or Indonesia or Vietnam or Middle East or जहाँ में उनको opportunity नजर आएगी उसमें invest करेंगे. सही. फिर पाकिस्तान में I feel कि बहुत सारे लोग आए experiment करने के लिए इस market के साथ and they've realized it's not easy to operate in this market. काफ़ी challenges हैं इसके और उसका result हमने देखा कि बहुत सारे businesses जिन्होंने कैपिटल रेस किया most of these were holding companies outside of Pakistan. Those entities were the ones that were getting capitalized and there was drip financing that was flowing into operating entities in Pakistan. So I think thesis यही था कि we'll show some growth और eventually जब exit करना होगा तो holdco के level के ऊपर exit करेंगे and we won't have anything to do with Pakistan. Again, I think Pakistan eventually if you're building value in Pakistan, if you're growing value in Pakistan, somehow you have to find a way to get it out of Pakistan as well, especially if it's foreign capital that's fueling that growth. तो वो अभी भी हमारे challenges हैं, आज के दिन भी challenges हैं सारे करने के. तो I think Pakistan के अंदर sooner or later businesses start realizing कि ठीक है grow करना है लेकिन profitability के ऊपर भी नज़र रखनी है. Right. और कुछ market भी ready नहीं है. Right? Every deck that comes our way starts with a 240-250 million population और जो भी business model होता है उसको 250 million से ज़रब दे के जी इतनी बढ़िया अगर इतना भी कैप्चर कर लें इसका 1% भी कर लें 1% उतना करते हैं. So वो ऐसा होता नहीं है. Yeah. Right? So the reality is that we have अगर आपने 250 million की population को cater करना है तो you have to price, you have to think of a product that all 250 million people want or at least जिनके पास spending power है, a sizable 150 million people or so want that product. You have to price it such that everybody can afford it. So आप हमारी incomes देख लें नहीं है 30-35,000 40,000 पे एक बंदा कमाता है रूरल एरियाज में इससे भी कम है इनकम. तो you have to price the product that way, then you have to distribute the product in a way that reach all those 240 million people. हम लाहौर कराची इस्लामाबाद के अंदर कोई चीज़ खोल के कहते नहीं कि हम पूरे पाकिस्तान के मार्केट कैप्चर करेंगे. It doesn't work that way, right? और लाहौर में भी DHA और ये 2-3 हमने कवर किए हैं. लाहौर में पूरा लाहौर नहीं मतलब जैसा. Yeah, absolutely. So right product, right price, right distribution. And unless all three are honing in and targeting the 250 million people, you'll never be able to scale to that level. So पहला था $10 million और फिर दूसरा फंड आपने बताया कि दूसरा नहीं बनाया. दूसरा नहीं बनाया ये बनाया. अच्छा सो अब काफ़ी सारी चैलेंजेस की हमने बात कर भी ली लेकिन डू यू थिंक कि पाकिस्तान विल एवर बी रेडी फॉर दैट स्टार्टअप माइंडसेट या इसमें कोई चीज़ है जो 5-6 चीज़ें हो जाएं तो हो जाएगा या गवर्नमेंट का माइंडसेट का चेंज होना जैसा ये फॉरेन कैफ वाली बात है अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही कि बाहर जा सके तो नोबडी वुड इन्वेस्ट राइट. तो या हमारे फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग हैं फॉर द राइट प्रोडक्ट प्राइस्ड राइट विद इन पाकिस्तान. आई थिंक आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी भी है अभी भी आज के दिन भी वी हैव लेबर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी. बाहर के मुल्कों में लेबर काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है. चाइना में बड़ी महंगी हो गई है. इंडिया में बहुत महंगी हो गई है. हमारे अभी भी रिलेटिवली स्पीकिंग काफ़ी एक्सपेंस कॉस्ट बढ़ी है लेबर की टेक्निकल लेबर की टेक्नोलॉजी लेबर की. लेकिन अभी भी कंपेयर टू द रीजन वी स्टिल हैव दैट अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन एक्सप्लॉइट. लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं हमारे मुल्क के अंदर दे हैव टू बी एड्रेस्ड. और हमें अपने ये जो गवर्नमेंट के ऊपर रिलायंस जो है इसको वी हैव टू गिव अप. आई थिंक
we've learned plenty of lessons there. Government कोशिश करती रहती है. NIC was a great initiative. It was the right person, the right place at the right time. उसने सही तरीके से प्रोग्राम स्ट्रक्चर करके आउटसोर्स कर दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत. सो इट वर्कड आउट somehow. जो मेच्योरिटी थी इकोसिस्टम की, आई थिंक उसने उसको एक्सप्लॉइट किया टू एक्सटेंड पॉसिबल. लेकिन इससे ज़्यादा हमें आई थिंक गवर्नमेंट पर रिलाई नहीं करना चाहिए. विल हैव टू सॉर्ट ऑफ फाइंड आवर ओन वे. सो आपने कहा कि अच्छा, मैं वो थोड़ा सा पार्ट आपका मिस कर गया था. आपने कहा कि यू गेट यू किक आउट ऑफ कि आपने शुरू वाला स्टार्टअप किया उसके बाद स्केल किया. तो विच पार्ट डिड यू गेट यू किक फ्रॉम? हम शुरू में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे ना कि यू सेड के डिफरेंट लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स जो 0 से 10 तक लेके जाने में अपने किक करते हैं, and the other ones after that. So I've generally been like that. So 0 to 10. Yeah, 0 to 10 kind of a person. अच्छा. Or VC, my thesis was that VC will, give me a constant dose of that 0 to 10 because you're associated with company, so बार-बार वो करने को मिलेगा. But this experiment at PMX is different. I think it was a company that was perhaps maybe not at 10, but Pakistan Mercantile Exchange. Yeah. So I'm really excited about that. And the way actually that opportunity panned out was because I wanted to create a commodity exchange in Pakistan. और मैं आसान लफ्ज़ों में क्या है ये? So Pakistan Mercantile Exchange is a futures exchange. Futures exchange का मतलब है कि आप स्पॉट मार्केट या आम बाज़ार या ई कॉमर्स होती है कि आपने ये कैंडल बेचनी है, मैंने ये कैंडल ख़रीदनी है और इस कैंडल की कीमत 100 रुपये है, तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा और आप मुझे कैंडल दे देंगे. दैट्स अ स्पॉट ट्रांजैक्शन, उसको हाजिर सौदा कहते हैं. दुनिया में अब मेजॉरिटी ऑफ द कमोडिटीज गेट सोल्ड थ्रू फ्यूचर्स ट्रांजैक्शंस. उसका मकसद ये है कि कमोडिटीज़ की प्राइसिंग जो है, जो प्राइस डिस्कवरी है कि किसी गिवन टाइम के ऊपर गंदम की या गोल्ड की या चने की या चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए, दैट उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए जिसमें जेन्युइन बायर्स और सेलर्स, आर्बिट्राजर्स और स्पेकुलेटर्स तीनों मिल के पार्टिसिपेट करें और उसकी प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करें. तो फ्यूचर्स में होता ये है कि बजाय इसके मैं आपको कहूँ कि ये कैंडल मुझे 100 रुपये की बेचते हैं, हम कहते हैं यार ये कैंडल है, आप 10 लोग मुझे 10-10 रुपये दें और डिटर्मिन करते हैं कि इसकी 1 महीने बाद इसकी कीमत क्या होगी. राइट. ओके. सो नाउ अ ट्रांजैक्शन जिसकी प्राइस डिस्कवरी 2 लोगों के बीच होनी थी, वो प्राइस डिस्कवरी अब 10 लोगों के बीच हो रही है. तो यू स्केल दैट टू thousands or tens of thousands and millions of traders. Everybody contributes a small price. So अगर आपने कैंडल का सौदा करना है, सब 1-1 रुपये जमा कराएंगे. लेट्स से अगर आपने 1% मार्जिन रिक्वायरमेंट रखी है कैंडल के सौदे पे, तो 1-1 रुपये जमा करा के एवरीबडी स्पेकुलेट्स. अब मुझे हो सकता है पता हो कि इसकी कॉस्ट क्या आती है, मैं उसकी बेस के ऊपर इसको प्राइस कर रहा हूँ कि महीने बाद मैं इसको इतने का खरीदूंगा. कोई और हो सकता है, उसे हो सकता है ये नॉलेज हो कि दुनिया में बत्ती जाने वाली है, राइट, और लोगों को कैंडल्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, राइट. मैं उसकी बेस के ऊपर इसकी प्राइस डिटरमिन कर रहा हूँ. राइट. तो ये प्री सेल है, सॉर्ट ऑफ आप कमिट करें वो प्राइस. यस. सो you buy that candle in the future at that price. उसको आप लॉक कर लेते हो. फॉर कमोडिटीज. It's a stock exchange for commodity futures. सही, जो भी बनी नहीं है फ्यूचर में आपने अभी से उसकी ऑप्शंस खरीद लिए हैं. हाँ, उसके आपके लिए यही रहेगी. हाँ, सो ऑप्शन इज डिफरेंट. ऑप्शन में आपके वो ऑप्शन होती है कि आप खरीदें या ना खरीदें. इसमें आपने पे कर, फ्यूचर में आपने लॉक कर दिया. आपने कहा है कि ये कैंडल मैं 1 महीने बाद उनसे 100 रुपये की खरीदूंगा. ठीक. और व्हाट इफ वो कैंडल ना बना पाया या कैंडल नहीं अवेलेबल हुई? सो दो तरीके होते हैं. सो सम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैश सेटल्ड, जिसका मतलब होता है कि उसमें डिलीवरी कंपल्सरी नहीं होती. ठीक है. सो आपने सौदा किया, सो लेट्स से आपने बेची ये कैंडल 100 रुपये की, कल को ये कैंडल 110 रुपये की हो गई. ठीक है. तो आपको लॉस हो गया 10 रुपये का. तो मैं 10 रुपये का मार्क टू मार्केट लॉस, आप जो जिसको फ़ायदा हुआ आपसे, आपके मार्जिन अकाउंट से 10 रुपये लेके जिसने खरीदी हुई थी उसके अकाउंट में डाल दूंगा. राइट. सो एज वी मूव, and that part can be regularized, right? हाँ, so the other part where the delivery is हाँ. So now this transaction continues throughout the duration of the contract and eventually expiry date comes. ठीक. एक्सपायरी डेट के ऊपर आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं. या तो आप वो सौदा लेने, जी, ये कैंडल लेने,
लेट्स से वो कैंडल 110 रुपए की हो गई थी, तो आपको जब वो कैंडल मिल जाएगी तो आपको इफेक्टिवली 110 रुपए की चीज़ मिल गई, जिसको आप मार्केट में जाके 110 की बेच सकते हैं। या अल्टरनेटिव ये है कि आपको 10 रुपए का जो नफ़ा हुआ है वो आपको दे दिया जाए 100 रुपए के साथ, या सिर्फ 10 रुपए दे दिए, जो आप 100 रुपए अपने डालें और 10 रुपए का जो नफ़ा है वो डालें और मार्केट से जाके आप कैंडल लेने 110 रुपए की। ठीक। तो फ्यूचर्स दो तरह के होते हैं, कैश सेटल फ्यूचर्स जो अभी तक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। मैं अब नए फिजिकल डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, डिलीवरेबल फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, जिसमें अंडरलाइंग कमोडिटी की डिलीवरी कंपलसरी होगी। सही। और उससे होता ये है कि जब आप यू कैन नॉट सेटल ऑन कैश, यू कैन नॉट सेटल ऑन कैश इफ यू रीच द एक्सपायरेशन डेट। अगर हमने कैश उससे पहले कैश सेटल करना है तो आप अपनी पोजीशन काटते हैं, अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर करते हैं, आपके पास वो सारी ऑप्शन है। बट इफ यू गेट टू एक्सपायरी विद योर ओपन इंटरेस्ट, यू विल हैव टू डिलीवर, टेक डिलीवरी और गिव डिलीवरी। एंड इफ यू डोंट डू दैट देन If you don't do that, then there are penalties. इसको अकाउंट सस्पेंशन हो जाएगी, ऐसा कुछ? अकाउंट सस्पेंशन, आपका एक साइजेबल आपके मार्जिन अकाउंट से पेनल्टी डिडक्ट हो जाएगी, वो कुछ एक्सचेंज रख लेगा, कुछ ऑपोजिट्स by the government? Yes, it's the only exchange in the country that can do commodity futures trading right now. There are only two exchanges. I never even know कि ये इंडस्ट्री मतलब रेगुलाइज्ड भी है ये इंडस्ट्री। No, this is very very tightly regulated industry. SECP इसका regulator है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ दो एक्सचेंज है, एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उससे आप वाकिफ होंगे, उसमें कंपनीज के शेयर ट्रेड होते हैं, और दूसरा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है जिसके अंदर कमोडिटीज ट्रेड होती हैं। और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ऑन एन एवरेज डे इज अबाउट 2 to 3 times larger volume than PSX, and on a good day it's about 5 to 6 times the volume of मेरे ख्याल से स्टार्टअप की बात हो रही है, तो just नहीं, No. It's a mature business. Oh wow. We'll probably do, we do. And how to do that? April हमने close किया है with about $4 billion in trade. Oh wow. Yeah. अच्छा, मैं I wasn't, अच्छा, A lot of people. अभी अपनी स्टार्टअप वाली पाकिस्तान की पोस्ट आई थी थोड़ा सा पहले, मैंने कहा अच्छा आपने कोई नया स्टार्टअप ज्वाइन किया, कोई आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं लाइफ में? मैंने जाके वेबसाइट देखी, मुझे वाकई अच्छा कोई मतलब क्लासिफाइड सी लग रही है कि कुछ चीज़ें बेच खरीद रहे हैं, पर मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा। No. So the way it happened was I went to SECP. ठीक है। And I said, जब मैं लाहौर स्टॉक joined it when? December अभी हाँ ठीक। So उससे पहले मैं SECP के पास गया था in the beginning of last year, और I said कि there's a huge opportunity, क्योंकि I don't know आप ट्रैक करते हैं कि नहीं, लेकिन पिछले साल पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम नहीं खरीदी फार्मर से। हाँ ठीक है। नॉर्मली हर साल वो गंदम खरीदते हैं, उसको सपोर्ट प्राइस देने के लिए। हमारे मुल्क में तकरीबन 25 से 30 मिलियन टन गंदम पैदा होती है, और तकरीबन 3 से 4 मिलियन टन पंजाब गवर्नमेंट खरीदती है, और 1-2 मिलियन टन पास्को और मुख्तलिफ ये सिंध और KPK की गवर्नमेंट्स खरीदती हैं। तो when Punjab government decided कि they're not going to procure any wheat, that created a 400 billion rupee hole in the market, जो पहले पंजाब गवर्नमेंट फिल करती थी। तो and the other thing I realized was कि हमारा जो मंडियों का निज़ाम है जिसके तहत फार्मर अपनी हार्वेस्ट बेचता है, वो 1897 का एक बेरर कॉटन एक्ट है, जो बाद में उसमें एडिशन की गई एक 1939 के अंदर मार्केट कमेटी एक्ट। सो कोई 100 साल पुराना निज़ाम है, कानून है, जिसके तहत हमारी मंडियों में सौदा बिकता है। सही है। जहाँ पे आपको सौदा मंडी में लेके जाना पड़ता है, उस 4 दीवारी के अंदर, जो आपकी जहाँ भी आपने फसल उगाई है उस नोटिफाइड एरिया को जो फॉल करती है, आप वहाँ पे आड़ती होते हैं, इनके थड़े होते हैं, उस थड़े पे आपको माल उतार के धड़ा लगाना पड़ता है। वहाँ पे व्यापारी आते हैं या बायर्स आते हैं, वो आपके सामने बोली लगाते हैं, और वो बोली कलूजन के तहत लगती है, आपको पता होता है कि क्या हो रहा है आपके साथ, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं होती। अगर आप फार्मर हैं, आप अपना माल लेके आए हैं, तो अब आपने बेच के ही जाना है, जो भी आपको कीमत मिलेगी। और हमारी जो मार्केट्स हैं उनमें जो प्राइस डिस्कवरी है वो बड़ी लोकलाइज्ड है। सो आप अगर राजा जंग के अंदर आलू काश्त करके मंडी में लेके जा रहे हैं, तो आप रायवन, कसूर और लाहौर की मंडी के आड़तियों को फ़ोन करेंगे, जो आपको बेहतर कीमत देगा, आप सिर्फ अपने ट्रक चला देंगे। ट्रक जाके सुबह 4 बजे लाइन में लगेंगे मंडी के अंदर एंटर होने के लिए। एक दफ़ा लाइन में लग गया, आप निकल नहीं सकते।
अब वो जो 2 से 3 घंटे का सफ़र है उसके दौरान मार्केट कैन मूव. अब लाइन में लगने से पहले आर्मी फार्म्स वाले अगर अपने 50 ट्रक लेके आलू के वहाँ पहुँच गए हैं तो लाहौर की मंडी में आलू की कीमत गिर जाएगी. सही. कसूर और रायवेंड में वही होगी. Right. और लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते इसका. राइट. सो प्राइस डिस्कवरी इज़ लोकलाइज. और इस तरह के बहुत सारे और चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आई वांटेड टू क्रिएट अ नेशनल एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट. एक नेशनल मार्केट हो यहाँ पे नेशनल लेवल कमोडिटी की प्राइस डिस्कवरी हो. फार्मर आसानी से अपनी गंदम चीनी आलू जो भी है वो बेच सके. Right. और आसानी से उसको कीमत मिल जाए. अपनी कमोडिटी को प्लेज करा सके एक्रेडिटेड वेयर हाउसेस के अंदर. सो बजाय इसके कि मंडियों में जाए पूरे मुल्क के अंदर आप वेयर हाउसेस का एक जाल बिछा दें. Right. फार्मर क्लोजेस्ट वेयर हाउस के अंदर जाके अपनी कमोडिटी को जमा कराए. उसको एक इलेक्ट्रॉनिक टाइटल मिल जाए Right. आफ्टर क्वालिटी असेसमेंट ऑफ दैट कमोडिटी. और वो टाइटल जस्ट लाइक अ स्टॉक सर्टिफिकेट वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर सके. Right. सो दैट वाज अ बेसिक कॉन्सेप्ट. Wow. तो जब मैं एससीपी के पास गया तो उन्होंने कहा कि फ्रैंकली स्पीकिंग अभी वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट अ थर्ड एक्सचेंज राइट नाउ. तो उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है. मुझे फ्रैंकली इतना पता नहीं था इसके बारे में तब तो जस्ट लाइक यू. तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे देयर इज़ अ पोजीशन फॉर अ सीईओ. सो व्हाई डोंट यू थ्रो योर हैट इन द रिंग अगर यू गेट सिलेक्टेड. तो you can bring this concept to us and we'll see if I just realized कि ये एक्चुअल पाकिस्तान गवर्नमेंट की कोई चीज़ है. पाकिस्तान मैं इसको कोई कंपनी समझता रहा हूँ. हाँ? अभी भी मेरे ज़हन में एक कंपनी चल रही है कि कोई कंपनी है जिसमें कंपनी है प्राइवेटली ओन्ड है. ये प्राइवेटली ओन्ड है. बट रेगुलेटेड बाय एससीपी. सही. लेकिन इसमें गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग है. इसमें 30-35% शेयर होल्डिंग नेशनल बैंक की है. अच्छा. 20-25% शेयर होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है. ओह अच्छा. फिर पाक कुवैत कंपनी, पाक ब्रुनाई इन्वेस्टमेंट कंपनी और एक दो और कंपनी. सो तो प्रॉपर शेयर होल्डर्स हैं. लेकिन इट्स रेगुलेटेड एंड इट्स लाइक अ बैंक. बैंक्स को स्टेट बैंक रेगुलेट करता है. एक्सचेंजेस को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. It is. It's an amazing platform. It's something you could do a lot of good in. लेकिन चैलेंज ये था कि जब मैंने ज्वाइन किया तो this platform was being used for trading of international contracts, commodity contracts. लेकिन उस इवन प्राइस डिस्कवरी लोकल नहीं हो रही थी. प्राइस डिस्कवरी भी इंटरनेशनल होती है. उसके अराउंड मार्केट मेकर्स अपना स्प्रेड स्पेसिफाई किया होता है उन्होंने. एंड पीपल वुड बाइंग एंड सेलिंग दीज कमोडिटीज विच इज़ गुड डिसेंट बिजनेस मॉडल. लेकिन उसका हमारी इकॉनमी से कोई इतना डीप लिंक नहीं था. तो माई पिच टू द कमीशन एंड द बोर्ड वाज कि हम इस एक्सचेंज को अपनी लोकल इकॉनमी के साथ लिंक करें. एंड द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट वाज एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग. वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए. तो अभी हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मैं पिछले 4-5 महीने से काम कर रहा हूँ जब से ज्वाइन किया. सो PMX हैज़ बिन नोटिफाइड एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर वीट की इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट्स. हमने को 1.5-2 लाख टन की क्रेडिट स्टोरेज ऑलरेडी निज़ाम के अंदर ले आए हैं. 2 लाख टन की मज़ीद ला रहे हैं. और द आइडिया वाज कि फार्मर वुड ब्रिंग देयर व्हीट टू दीज accredited warehouses, गेट एन EWR इशूड जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड होगी. लेकिन वो कोई डिसीजन मेकिंग में डिले हुई गवर्नमेंट की साइड से. इवेंचुअली इट गॉट रोल्ड आउट लेट. सो नोटिफाई तो हो गया, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया. सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट ट्रेडिंग ऑफ व्हीट. एंड पैरेलल चीनी की ट्रेड मुल्क के अंदर बहुत होती है. आपको शायद आइडिया ना हो, अरबों में ट्रेड होती है. एंड इट्स सेवरल 8 to 10 times the actual sugar that gets traded on informal exchanges. So आप अगर किसी शुगर के डीलर के साथ मिलें तो वो he'll almost always walk in with 5 mobile phones. वो सामने सजा के रखेंगे और वो 5 ऑन होंगे. हर एक के ऊपर 2 WhatsApp होंगे और WhatsApp के ऊपर informal exchanges बने हुए हैं और वो चीनी ट्रेड होती है इसी तरह. So we're trying to bring that onto PMX now. Wow. So this is very exciting. All of a sudden, DevZinc is a boring company now. फिर we want to do training of asset fractions. So Pakistan के अंदर one of the most sought after asset classes is real estate.
So one of the things that I want to do is एक commercial real estate DHA राया के अंदर एक प्लाजा आजकल 50 करोड़ रुपए का है. बट वो 50 करोड़ का प्लाजा खरीदने के लिए आपके पास 50 करोड़ होने चाहिए या 2-4 दोस्त मिलके 10-10 करोड़ डाल के खरीद लेंगे. What I want to do is I want to fractionalize that plaza. लाख है, 2 लाख है, 10 लाख जो भी है. आपके पास 10,000 रुपए भी हैं तो आप इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दोस फ्रैक्शंस. ठीक. और उसकी जो भी रेंटल यील्ड आएगी वो जितनी आपके पास फ्रैक्शन है उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. Right. So that's another thing we're working on. We're also working on so ये wheat और sugar के बाद we want to trade rice, maize, gram chana and then cotton on the exchange. फिर ये एसेट की फ्रैक्शंस हैं. We've had discussions about the climate change ministry about carbon trading. लेकिन उसके लिए भी कुछ रेगुलेशन वगैरह आनी है मुल्क में, फिर वो एनेबल होगा. Then मैं चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टॉक्स जो हैं सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स वो भी पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाएँ. सो अगर इस वक्त आप बहुत लोगों को पता नहीं है, अगर कोई भी पाकिस्तान में बैठ के नैस्डैक या डाउ जोन्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो पीएमएक्स के ऊपर कर सकता है. अच्छा. यस, रुपीस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे. आप गूगल का स्टॉक खरीदें, टेस्ला का स्टॉक खरीदें यहाँ बैठ के. गूगल वो सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स है जो मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ. सही. इस वक्त इंडेक्सेस लॉन्च की हुई हैं. So, अच्छा गूगल, अच्छा हाँ, गूगल इज पार्ट ऑफ नैस्डैक फॉर एग्जांपल. तो आप नैस्डैक में S&P 500 में करना है. हाँ, एग्जैक्टली. सो दैट गिव्स यू अ पोर्टफोलियो ऑफ यूएस कंपनीज दैट यू कैन इन्वेस्ट इन. तो वो आप इजीली पीएमएक्स के ऊपर अकाउंट खोलें और नैस्डैक खरीदें, डाउ जोन्स खरीदें, S&P खरीदें, निक्के खरीदें. फिर कुछ करेंसी पेयर्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप गोल्ड खरीद सकते हैं. सो पाकिस्तान के अंदर अगर आपने 24 कैरेट प्योर गोल्ड खरीदना है, आपके पास ओनली चॉइस वॉज कि आप किसी सुनियारे के पास जाएं और ट्रस्ट करें कि वो आपको खालिस सोना देगा. लेकिन अब पीएमएक्स के ऊपर आप 300-350 रुपये से, यानी कि 1,000 ऑफ तोला से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं. फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ. एंड देन वो चूँकि हमारे पास सारों की डिमांड एक्यूमुलेट होकर आती है तो हम फिर गोल्ड खरीदते रहते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको बैंक्स के वॉल्ट्स के अंदर सिक्योर करते हैं, उसकी कस्टडी रखते हैं. और अगर आपकी पोजीशन 10 तोले से ज़्यादा हो गई है तो आप हमसे डिलीवरी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. मोस्ट पीपल वुड जनरली जस्ट सेल द गोल्ड जब उनको पैसे चाहिए होंगे. लेकिन ये है कि आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो गोल्ड की अप्रिसिएशन है, उसकी प्राइस भी पैक्ड होती है डॉलर, तो आपको वो हेज हो जाता है, आपका करेंसी हेज हो जाती है. दूसरा, गोल्ड की कीमत पिछले दिनों तो काफ़ी ऊपर गई है, तो उससे हमारे डिमांड भी काफ़ी आई हुई थी. So a lot of these things average Pakistan doesn't know. Yeah, let's suppose मारिया 1 लाख रुपए महीने का बचाती है. ठीक है. अब वो क्या करे? कैसे, कोई अकाउंट है ऑनलाइन जाके साइन अप करे, क्या करे? कोई बैंक? एब्सोल्युटली. किसी भी ब्रोकर को चूज करें. हमारे 80 के करीब ब्रोकर्स हैं. वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे ओपन एन अकाउंट का लिंक है pmx.com.pk. ठीक है जी. वहाँ पे लिंक है चूज अ ब्रोकर या बिकम अ ट्रेडर, इस तरह का लिंक है टॉप राइट के ऊपर. वो आपको एक ब्रोकर्स की लिस्ट पे ले जाएगा. हम ब्रोकर्स के जो टॉप ब्रोकर्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ, जो वॉल्यूम वैल्यू वगैरह हाई ट्रेड करते हैं, आप उनके साथ कर सकते हैं. वरना अगर आपको कोई शेयर के वहाँ पे साइन अप कर लिया, अकाउंट बन गया, आपका बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे मूव, आपका अकाउंट बन गया. जब आपका अकाउंट बन गया ब्रोकर के साथ, आपका एक सब अकाउंट पीएमएक्स के अंदर बन जाएगा. ठीक. हम आपको उसका अकाउंट नंबर दे देंगे, आईबैन नंबर दे देंगे. ठीक. आप वो पैसे पीएमएक्स के उस सब अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वो सेग्रीगेटेड होंगे, वो आपके पैसे रहेंगे. ठीक है. So that's another benefit of trading on PMX कि you're not trusting a broker per se, you're trusting a national institution. सही. वो पैसे जब आपके मार्जिन अकाउंट में आ जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो अगर आपने सोना खरीदना है तो उसके शॉर्ट ड्यूरेशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली लाइक बाइंग गोल्ड. द सेम डे उसकी सेटलमेंट होती है. हम आपके बिहाफ पे वो सोना खरीद लेंगे. तो मारिया अगर लाख रुपए महीने का सेव करती है तो शी मे डिसाइड कि मैं 20,000 स्टॉक्स में डालूंगी, 20,000 मैं फिक्स इनकम में रखूंगी, 20,000 का मैं सोना खरीदूंगी. ठीक. तो वो हर महीने आके 20,000 का सोना इजीली हमारे प्लेटफॉर्म से खरीद सकती है. सही. और सोना का तो अपने आगे सेम डे सेल होता है. लेट्स सपोज आई डोंट नो, चने में इन्वेस्ट किया हुआ है, गंदम में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसका क्या सीन होता है? इसका कोई टाइम होता है? सो आप अगर गंदम की प्राइस हिस्ट्री देखें पिछले 10 साल में, राइट. सो गंदम अप्रैल में जब हार्वेस्ट टाइम होता है तो गंदम की जो प्राइस होती है और जब उसकी लीस्ट सप्लाई होती है और मैक्सिमम डिमांड होती है दिसंबर जनवरी टाइम फ्रेम के अंदर, समटाइम्स ऑल द वे अप टू मार्च, तो उसमें तकरीबन एट अ मिनिमम 29% से 105% का प्राइस डिफरेंस होता है. राइट. और ये कंसिस्टेंट है.
इट हैज़ नेवर बिन कि नेगेटिव हो कि आपने अप्रैल में गंदम खरीदी हो सस्ती बेचनी पड़ी हो. बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गंदम खरीदने के लिए आपको मंडियों में जाना पड़ेगा, व्यापारियों से डील करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा. ये सारी हैसल जो है वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं. राइट. तो जब गंदम एक accredited वेयर हाउस के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, वो बैंकेबल बन जाएगी. उसकी EWR, खैर वो फिर इतनी फ्लक्चुएशन भी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी स्टिल फ्लक्चुएशन भी कम होगी, बट सप्लाई डिमांड स्टिल वर्क्स. या तो आप तो उस्मान या खुरम या मारिया अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर बैठ के आराम से 10 लॉट गंदम के उठा सकती है भाई वाह. और वो 6 महीने बाद गंदम बेच सकती है मारिया का प्रॉफिट के ऊपर. राइट. And this is physical commodity Sharia compliant भी है. With that there was another issue that I was about to say कि जब आप कैश सेटल्ड फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे होते हैं, that's not Sharia compliant. हाँ. तो जब आप physical deliverables ट्रेड कर रहे हैं, that becomes Sharia compliant. I wanted to ask, but then I was like कि पता नहीं ये क्वेश्चन राइट भी है कि नहीं. नहीं, हमारे मुल्क के लिए राइट है. हमारे मुल्क के राइट है, लेकिन हमारे मुल्क में बैंक भी तो है ना. So not everyone is answerable. Right. नहीं, 2027 तक तो अब सारों ने शरिया कंप्लायंट होना है, तो देखते हैं क्या होता है. राइट. सो लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज आपने पता कर लिया इसके बारे में, आप ये फरमा रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज आप कैश सेटलमेंट करें तो वो शायद शरिया कंप्लायंट ना हो, लेकिन अगर अभी आप दूसरे वाले में जाते हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा कमोडिटी है तो वो शरिया कंप्लायंट है. सही. अभी मेरी बिलीफ ये है, मैंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं ली उसमें, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर व्हेन देयर इज अंडरलाइंग फिजिकल कमोडिटी इन्वॉल्वड, उसको अपडेट कर रहे हैं, so it should be Sharia compliant. Sure, makes sense. मैंने अपनी टीम को कहा हुआ है कि इसकी आप कोई सर्टिफिकेशन वगैरह भी लें, because a lot of people don't invest in the futures exchange thinking कि Sharia compliant नहीं. मैं जब आपने बात शुरू की तो मैं मेरे से में ये था कि it doesn't Sharia compliance. And that's a legitimate concern of majority of people in Pakistan. Right. इसकी टेक्नोलॉजी कैसे मैनेज करें? Sound all so it's a combination. So we have one of the world's most ubiquitous trading platform. It's called MetaQuotes. Okay. जो हमारा मेन इंजन है क्लाइंट के लिए, और आपका इन-हाउस बिल्ड है ये? नहीं, ये एक ग्लोबल कंपनी है. ठीक. सो ट्रेडिंग के लिए हम वो यूज़ कर रहे हैं. सही. बट देन इट्स सराउंडेड बाय अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ बैक ऑफिस एप्लीकेशंस. सही. जिनके अंदर हमारे बैंक के साथ इंटीग्रेशन. जस्ट दैट द अदर यूज नहीं कर रहे. नहीं, Oracle फाइनेंशियल नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफिस में काफ़ी सारी एप्लीकेशंस गालिबन Oracle यूज़ कर रही है. हो सकता है, आई एम नॉट श्योर. सही. आप फरमाए थे कि सो ये जो बैक ऑफिस एप्लीकेशंस हैं, इसमें ये सारी इन हाउस डेवलप्ड है. सो वी हैव अ इन हाउस टीम जो सारी चीज़ को मैनेज करती है. अब मेरे ज्वाइन करने से पहले, आई थिंक सम टाइम इन थर्ड क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, द बोर्ड हैड डिसाइडेड कि हम एक्सप्लोर करें ऑप्शंस, जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको भी locally develop करने का. DevZinc is a technology company, if you do not know, मतलब नहीं. Yes. we provide technology at your doorstep. Yeah. I had a very different impression of DevZinc from the last time we met, a few years ago. I think उस वक्त तो it was more about staff augmentation. Yeah. But now, mashallah, you've explained that you have a full B2B division. And what we understood is that so staff augmentation was something which COVID की वजह से वो फिनोमेना बन गया. उससे पहले वो कोई फिनोमेना था नहीं. Easy sell है HR कंपनी. अब हम it was a means to an end. So for us the end is to own the outcome. So we have to own the outcome. और यही तकरीबन जितने भी सॉफ्टवेयर के बिजनेस में लोग हैं, I really ask them कि यार ये बहुत छोटी बात है कहना कि यार मैं डिलीवरी मेक श्योर कर रहा हूँ. सही. ये बात बहुत कि यार मेरा PM ऑफिस इतना अच्छा कमाल है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपकी बड़ी कमाल होगी, हम आपको जो कहेंगे उतने में डिलीवर हो जाएगा. ये भी छोटी बात है. अगली बात ये है कि हम आपकी आउटकम ओन करेंगे. सो फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल सिस्टम विल नॉट गो डाउन एंड दिस काइंड ऑफ SLA I will be able to provide you and this will not be your tension. So outcome owned business. So हमें बड़ा टाइम लगा इस पे पहुंचने में. ऑब्वियसली ये रातों रात नहीं होता. मतलब इंजीनियरिंग की वो अपनी बात के मतलब इंजीनियरिंग वीक है. It is not easy at all. I think you should be very proud given the scale that you have achieved at DevZinc. It is not easy. I mean, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि most of us, we overestimate the ability of people to get out of their bed and make their bets, right? So to form a company, to grow the company, to get it to this stage is just absolute, phenomenal, leadership and execution. So kudos to you for that. Oh, thank you so much. लेकिन अब आपने इसके साथ साथ इसकी लीडरशिप को ग्रो करना है. जी. आपने कहा बोर्ड ऐड करें. बोर्ड ऐड करें, definitely. Somebody to hold you as a CEO accountable. Somebody you can ask questions of you. Somebody अगर आपको कोई सवाल हो तो you can bounce off, people. 3 साल पहले मैंने एक बंदे का इंटरव्यू किया सेल्स के रोल के लिए.
and so he did not end up joining us. So I asked him why. Matlab, our offer was more than double than his current, and he decided not to come. He said, "Yeah, everything is right, but you're not financially disciplined institution." मैंने कहा, what does it mean? We are profitable, we make money. कहते, yeah, but you don't know that. आपका यानी so how do you know you are making money? मैंने कहा, यार अंदाजा है, मतलब यानी कहते अंदाजा है ना, मतलब यानी there has to be a financial audit, there has to be. तो उस दिन मुझे फील हुआ कि दिस इज, फिर मुझे डॉक्टर जरताश की एक बात याद आई. उन्होंने मुझे कहा था कि कॉन्फ्रेंस में द बेस्ट हायरिंग दैट वी डिड वाज सिप्रा साहब. सही. तो और मुझे काफ़ी से बात समझ में आई कि यार व्हाई वाज इट द बेस्ट हायरिंग. यू वुड से कि टॉप इंजीनियर हायर किया वो बेस्ट हायरिंग होगा, लेकिन फाइनेंस का है, अकाउंट्स का है. तो देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दैट. और मुझे ये फील हुआ कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी टू यू टू ऑल्सो. मतलब डेटा आप ट्रैक कर रहे हो तो आप हमारे लेवल पे डिसीजन मेकिंग इज ऑन अबाउट डेटा. प्रीवियसली इट वाज ऑल अबाउट गट फीलिंग. ना जैसे फ्लोर पे गए, अच्छा ये फीलिंग लग रही है, चलो ये कर लेते हैं. किसी से बात करनी है, पूरे कंपनी को जमा की, ऑल हैंड की, एक बड़ा सारा अपने मोटिवेशनल सा लेक्चर दिया, सारे हो गए सोल्ड के, चलो यार अब ये नई डायरेक्शन इस पे चल रहे हैं. अब चेंज मैनेजमेंट इज़ अ टास्क. अब उसको रोल आउट कैसे करना है. चेंज मैनेजमेंट के अंदर अगर नई लीडरशिप आई है तो पुरानी लीडरशिप को पैसे लेके चलना है. फिर पुरानी लीडरशिप के अंदर इंटाइटलमेंट होगी कि यार हम तो डेवजिंग बनाई थी हमने, अब आप कह रहे हैं अब चेंज हों. ये तो नए लोग हैं, इनको क्या पता कि क्या चेंज करना है. ये तो बाबे इंडस्ट्री से उठ के आ गए, हम पूरी ज़िंदगी इनको बुरा भला कहते रहे. मतलब हमने रेवोल्यूशनरी बनाया ना कि यार हम ये नहीं है, हम डिफरेंट है, अब हम भी वही होने जा रहे हैं. तो मतलब वाई आर वी डूइंग द सेम थिंग. तो it's all any process and journeys that you learn. Yeah, exactly. And board And the best leaders, they realize, that now is the time for change or growth, right? So either you change yourself or grow yourself, or you let others, जिस आप कह रहे हैं, बाबू को replace करके young blood लेकर आए. So good leadership is about keeping your eyes and ears open and making those. तो एक चीज़ मुझे बहुत हेल्प की ना. सो हम लोग जब एकेडमिया में होते हैं, लम्ब से निकले, उसके बाद दोबारा मैं कभी मतलब मैं स्टैनफोर्ड गया. मैं स्टैनफोर्ड इसलिए गया था कि मैंने टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी थी. मैंने कहा यार मेरे पास कोई बिजनेस डिग्री नहीं, चलो बिजनेस डिग्री आ जाएगी. तो आई डिड दैट, बट आई रियलाइज़ कि मैंने कुछ उसमें लर्न नहीं किया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसके अंदर, क्योंकि सारा काम मैं वैसे भी कर रहा था. मुझे सिर्फ उसके इंग्लिश नाम पता लग गए, प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलते हैं इसको, यानी पैसे पहले भी कर रहा था लेकिन मुझे नाम पता लग गया, राइट. सो मुझे फ़ायदा नहीं हुआ. तो मैंने ये बात बहुत प्रचार करना शुरू कर दिया कि यार ये बेवकूफ़ाना बात होती है एकेडमिया में जाना, बस एक्सपीरियंस से सीखो, मतलब यू डोंट नीड इट. But when I was going through the change management last 2 years ago, so it was very complex thing. And so I went to Harvard for change management courses. I went to LUMS, वो जो उनका REDC वाले courses होते हैं. It really helped me. And I was reading their things and I was thinking यार ये तो मेरे लिए लिखी गई है. मतलब यानी कि somebody has actually gone through all these things और बता रहे हैं कि ये नहीं करना, ये करना है. PR के जब हमारे मसले हुए तो आई रेड अबाउट द स्टारबक्स केस स्टडी एंड आई रियलाइज कि अच्छा ये सबके यही मसले होते हैं, सारे ही इस पेन से गुजरते हैं. और उसमें यानी डिफेंसिव आना भी नुकसानदेह होता है. कई दफ़ा आप सही होते हो, आपको तैयारी अजीब बात कर रहे हो, आप मैं तो सही बात कर रहा हूँ, मैं तो लॉजिकल हूँ, लेकिन देन अच्छा ये करना था, ये नहीं करना था. अब आपके लेवल पे एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, राइट. सो आई थिंक पीपल हु हैव डन इट बिफोर कैन रियली गाइड यू. Absolutely. Having good board, how to go about it, how to build a good board. You asked me and we did not talk about it, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन एक्चुअली में भी है. Yeah, I think one thing you mentioned is you're operating in 5-6 different geographies. So I think 7, mashallah, that's great. So I think one thing that you should do is just target that you should have one business leader from each of the geographies as part of codify करने की बात करें, वो process outrun करने की बात करें. So I think you should look for a seasoned business leader who understands your industry, who has demonstrated, their leadership, their vision in that country, understands that country well. तो आप उनको identify करें, उनको अपने board के ऊपर लेकर आएं. So that certainly helps. I think every person worth bringing on board is going to want to get assurance that it's a well-governed company. Financial discipline है, hiring discipline है, decision making का discipline है. So you've already said that you brought on board a CFO that knows how to run a public company. That's great. I think get top tier external auditors come in, audit your company books. We've been doing it for years now. That's great. People find a lot of comfort in that. I think come up with a story
plan, strategy for your company that inspires, people to be part of that journey, right? So बहुत सारे board members are there to endorse the energy and strategy and vision of, CEO. They're not there to prescribe that, right? Good board members at least. So I think आप जब भी अच्छे board members से, prospective board members से बात करेंगे, they would want to know what your vision for the company is and what's your game plan going forward. ठीक है, वो छोटी मोटी course correction कभी इधर को left को दिखा दे दिया, कभी right को दिखा दे दिया, that is the board's job, right? लेकिन you need to have a compelling story for yourself. There's a lot of services companies में आजकल there's a lot of questions around AI, the role of AI, and how that is making engineers very productive. So जो project या जो काम पहले 100 engineers करते थे, वो अब हो सकता है 20 कर रहे हो, 25 कर रहे हो, 30 कर रहे हो. So that means के a services oriented company that is dependent on HR and headcount, और वो पहले उनका metric होता था, you need to now realize कि productivity को कैसे measure करना है. और ये जो एक demand की dearth होगी going forward because of AI and the efficiency it brings, उसमें आपकी क्या response होगी आपकी company की. Makes sense. So इस तरह के सवालों के इनको आप preempt करें, के जवाब तैयार करें, और then just go out and meet people, make sure you have good chemistry with them, good rapport with them. They are listeners, they're not very prescriptive. वो आपको जब मिलेंगे 1-2-3 दफ़ा. Is it like hiring a therapist? मतलब आप बता रहे हो और वो सुन रहे हैं आपकी बात, फिर आपको कहीं बता भी जाएगा ये ऐसे सोच लो. I think I would say an executive coach is more like a therapist. I think good leaders should have it. A good executive coach is like a therapist. Do we have that in Pakistan? मुझे नहीं पता. I mean, but it doesn't have to be Pakistan. यार आजकल Zoom के ऊपर आप sessions में you don't have to limit yourself to coaches in Pakistan. Okay. But find good executive coach. जो चीज़ें very very useful. और they're like a therapist. I think board is slightly more involved in business. उनमें आपको involvement चाहिए, उनका time चाहिए, उनका industry की expertise चाहिए. Executive coach doesn't necessarily need to be from your industry, for example. It just needs to be a good leadership coach. Just makes you question yourself. Yeah, so those are so executive coach, board, and board इतना involved होता है कि वो so normally you give them questions and then they just guide you, or they are just hands on involved in the statements and this and that. नहीं, so एक prescriptive governance का role है board का, जो उन्होंने करना होता है. बोर्ड के लोग आपकी ऑडिट कमेटी पर होंगे, फॉर एग्जांपल. ऑडिट कमेटी विल इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल ऑडिटर्स, आपके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, उसके डिसिप्लिन को देखेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे. सो दैट्स मोर ऑफ अ मैकेनिकल ऑपरेशन रोल ऑफ बोर्ड. Similarly, they will require that you have an internal auditor, for example. हो सकता है अभी आपका ना हो या आपको रखना पड़ेगा. Similarly, आपकी HR कमेटी होगी बोर्ड की. So board will have to listen to your justification. कोई कंपनी को कैसे ग्रो करना है, HR कैसे ऐड करना है, सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए, कॉम स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए, what makes sense, what doesn't make sense. तो ये सारी चीज़ें मैकेनिकल होती हैं और ऑपरेशनल नेचर की होती हैं. सेकेंड रोल बोर्ड का होता है आपको स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देना आपकी स्ट्रैटेजी पे. व्हाट शुड डेवज़न लुक लाइक इन 3 years, इन 5 years, इन 10 years. इतना तो खैर नहीं आगे को कहता, लेकिन कम से कम आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अगले 4 से 5 साल के अंदर कैसे इवॉल्व करेंगे. यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर पाथ टू एग्जीक्यूट दैट स्ट्रैटेजी. उसके मैकेनिक्स ऑपरेशनल डिटेल्स वो आपकी जिम्मेदारी होगी एज अ CEO. But the board will guide you as far as the big overarching goals and direction is concerned. और तीसरा role I think board का होता है coaching का. That's why I didn't readily agree and I had to think about whether they it acts as a therapist. I think वो एक partial role है board का. और वो मिस्टर है का बंदा रो बंदा. Yeah, वो आपकी कुछ board members के साथ आपकी chemistry बन जाएगी. You will access them more frequently. You will bounce things off of them more frequently. कुछ बोर्ड मेंबर्स के साथ जिनका आपका कंफर्ट डेवलप हो जाएगा, वो आपसे हो सकता है टफ क्वेश्चंस पूछे कि यार ये कर रहे हो,
बोर्ड में तुमने ये प्रेजेंट किया था, दिस डजंट मेक सेंस, आई नीड अ लिटिल मोर comfort on why that's the right thing to do. Right. So, and what's the right equity allocation that you should do for the board? Board is paid through equity, right? See, both. I mean, the board is Right. paid through equity, especially in startups that are not profitable. ज़ाहिर है पैसा नहीं होता. You want to save all the money that you should take. also have board. Yes, absolutely. यानी आप कंपनी स्टार्ट करें साथ ही बोर्ड भी रख लें. I mean, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, so generally that, I mean, startup goes through phase where perhaps you're just by yourself or 2 or 3 people, और कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की हुई, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहे हो या इनफॉर्मल बिजनेस चल रहे हो. But generally when you get to a stage where you realize that it's worthwhile investing in formation of a company, putting in place a governance structure that is required by company's law, at that stage you should have a board, I believe. So ऐसा कोई राइट नहीं है कि यानी 5% equity should be for the board, ऐसा कोई ऐसा राइट? I think startups में board is generally compensated through equity. ठीक. और उसमें डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है. Anywhere from 0.25% to maybe 1%. बहुत यंग है तो maybe 2%, क्योंकि dilution होनी होती है आगे जाके. But I think if you're a profitable company, you'll be better off, just paying the board members as opposed to compensating them in equity. You might, someone might choose, I see so much growth in this company, I don't need money, and most of the board members that you talk to wouldn't need money. Lekin it's just a token amount, as a token of thanks. But many would say कि हो सकता है, some say कि यार मुझे equity दे दो, a certain percentage in your company. सही. और अगर आपने जाके डिफरेंट जियो लोकेशन पे हो तो दैट्स फाइन, क्योंकि आपने कहा था फ्लाई भी करवाओ उनको इकट्ठे, और एक जगह पे होना भी बहुत ज़रूरी है once in a while. Yeah, I think you can have, आपके साल में 4 से 5 board meetings होंगी typically, और उसमें से one of the meetings could be in person. So मैं अभी Incita it's a fund out of Singapore, it's an impact fund, so मैं उसकी IC के ऊपर हूँ. तो हमारी 3 meetings remote Zoom के ऊपर होती हैं. अभी कल परसों थी मेरे ख्याल में, Wednesday को. And then one of the meetings we make it a point कि everybody gets together in one location. So that's a good formula. सही, मेक सेंस. बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे लिए वो आप फूडी हैं. Yeah. और साथ ही आपने वेट भी लॉस किया. 500 pounds. 50 pounds में. सॉरी, इसको कट करें, इसको मैं सॉरी मैं कहाँ पहुँचा हुआ. मैं शायद हमने बहुत ज़्यादा नंबर डिस्कस कर लिए, तो मैं 50 pounds. अगर आप रेवेन्यू ऐसे कोड करते हैं जैसे मेरा वजन कोड कर रहे हैं, nobody's gonna believe you, man. एक सेपरा एक्स्ट्रा लगा के. So 50 pound आपने लूज किया, साथ फूडी भी हैं, और अभी आपने मुझे बात बताई थी कि आपने बेकिंग और उस तरह की चीज़ों में भी चले गए. तो हाउ डू यू मैनेज दिस? यार खाने का शौक है, इस वजह से वजन चढ़ा भी. लेकिन आई थिंक आई टर्न 50 लास्ट ईयर, so I realized कि यार now it's downhill from here, and if I wait too long and keep putting on weight, it's going to become unsustainable. और आपको sort of indications होने शुरू हो जाते हैं, उठने बैठने में मुख्तलिफ. अभी आने से पहले मैं देख रहा था आपकी पहले जो रूटीन की जो मजलिस होती है वो फर्श के ऊपर शायद होती है इधर कहीं. हाँ, वो अंदर मजलिस है, मैं दिखा रहा हूँ आपको. हाँ. तो मैंने आने से पहले मारिया से पूछा कि मैं शलवार कमीज पहन के आऊँ ताकि आराम से उठ बैठ सकूँ फर्श से, या पेंट कोट में आ जाओ. तो जी सेड कि नहीं, आज वो ये सोफाज वगैरह हैं, तो इस तरह की चीज़ें फिर आपको बॉदर करना शुरू कर देती हैं. राइट. देन सो मैं हमेशा से गोल ओरिएंटेड रहा हूँ. जो भी मैं ज़िंदगी में किया ना, गोल बनाया कि यार इसको परस्यू करना है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक इन जनरल एज अ प्रिंसिपल इन लाइफ. जो भी चीज़ करनी है, छोटी सी भी चीज़ करनी है, उसको गोल बनाओ और डू स्मॉल थिंग्स टू जस्ट दैट टेक यू टुवर्ड्स द गोल एवरी डे. और समटाइम्स अगर आप ये सोचने बैठ जाएंगे गोल को अचीव कैसे करना है, तो यू नेवर इवन गेट स्टार्टेड, राइट. सो वो ग्राम वेबर का मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो ही सेड समथिंग वेरी memorable. He said, how is the biggest killer of big dreams, right? So अगर आप ये सोचने बैठ जाएंगे यार ये ख्वाब मैंने कैसे अचीव करना है, तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं करेंगे. So the big thing is कि ख्वाब अचीव करें, रोज छोटे छोटे एक tiny step लें towards that. As long as you're directionally moving in the right direction, तो छोटे छोटे steps लेके if you're consistent enough, disciplined enough, you'll eventually get there, right?
सो मेरा भी यही था, सेट माई सेल्फ अ टारगेट, मैंने वज़न लूज़ करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कैलोरीज कम की, वॉक शॉक शुरू की, सही and then it starts showing results, फिर आपको उससे थोड़ा इंस्पायर होते हैं, फिर आप थोड़ा मज़ीद करते रहते हैं, just like building a company or doing anything else in life. You सही get inspiration. बेस्ट प्लेस इन लाहौर फॉर दुमा कढ़ाई इन योर ओपिनियन? दुम्बा कढ़ाई ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। अभी इलियास ट्रक इलियास? अड्डे वाला, अच्छा वो ट्रक अड्डे वाला जो ओरिजिनल वाला है वहाँ पे? Yeah. आई सी। वो ही नहीं बट खाया हुआ है? हाँ मैंने खाया हुआ है, लेकिन वो बहुत दूर है, तो मतलब उसके पीछे गनी शनवाड़ी जो था ना, वो ज़्यादा मुझे मज़ा लगा था। हाँ, गनी भी अच्छा है, आई मीन दे बोथ वेरी गुड। इलियास में मुझे थोड़ा ये बेनिफिट था कि हम फ़ोन करके ऑर्डर प्लेस कर देते थे, वो थोड़ा जानते थे, और अच्छा। अच्छा गोश्त मिल जाता था। राइट, And I'm sure if you have a similar relationship with Ghani, you'll probably get good kadai there as well. इंटरेस्टिंग। अब गनी तो मेरे ख्याल में इधर पीछे कहीं आ गया है, ये यहाँ पे जम्मू स्टॉप के पास, हाँ उसकी 11 के साथ। तो एंड बेस्ट चाइनीज, ये मैं अपने लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। बेस्ट चाइनीज वुड बी, I like Yum, ओके I like Asian Wok. I think food quality wise, ये वो घोड़े वाला कौन सा है यार, मैं नाम उसका भूल गया। हाँ पीएफ चैंग। PF Chang is good, लेकिन I think it's not good value for money. It's very expensive. ओके I think वो शायद फ्रेंचाइज फी वगैरह रॉयल्टी जो भी देते हैं उसकी वजह से खाना बहुत महंगा है उनका। इफ यू हैव टू चूज योर डेथ रो मील, व्हाट मील वुड दैट बी? बिरयानी, I like You good like biryani. biryani, so- Simple. Which biryani? Karachi biryani, Lahore biryani? Boneless mutton biryani, Boneless मसाले वाली, mutton biryani with aloo, without aloo? with aloo. With aloo. I don't mind aloo. Yeah. You don't mind aloo, you like aloo? No, I don't mind aloo. मैटर नहीं करता मुझे। मैटर नहीं करता है, it's सही। immaterial. मुझे एकदम दिल का था बिरयानी खाने का। सही। Is legacy important to you? Yeah, I think after a certain stage in life, मैं जब पाकिस्तान मूव किया था, I was financially very secure, alhamdulillah. So once you've met your financial goals, फिर आगे फिर बंदा यही कहता है यार कि आप पीछे छोड़ के जाना है. Right. So you're looking for leaving your dent on the world. So that's what drives you. वरना फिर बंदा कहता है यार बट रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, कोई ज़मीन वगैरह लेके उसको कास्ट करते हैं. But if you're working after being financially secure, I think you're looking to make an impact and leaving a dent on the universe. So मेरे केस में तो at least that's what Are you happy with your impact in last 10 years? No, I think I've just been a very small fish in a pond. I've tried my best. जहाँ पे contribute कर सकता था किया, but it's not the kind of impact that That I you're want to looking be for in remembered PMX? by. Yeah, PMX. I genuinely think that if we are able to create a national commodity exchange जहाँ पे हमारे किसान को, मैं आपको numbers बताता हूँ, they are staggering. So हमारे typically हमारे मुल्क के अंदर कोई 50 से 55 मिलियन टन का हार्ड ग्रेन प्रोड्यूस होता है, और इंडिया के अंदर को 350 मिलियन टन का होता है. 350 मिलियन टन के लिए उनके पास ऑलरेडी को 150 मिलियन टन की स्टोरेज है हमारे मुल्क में, और वो 70 मिलियन टन के भी मोदी ने पिछले साल अनाउंस किया, मजीद वो ऐड कर रहे हैं. सो दे गोना गेट टू अबाउट 250 मिलियन टन. If you look at different countries like US, China, Brazil, Russia, they all have anywhere from 80% to 110% of their annual game production in terms of storage in the country. हमारे मुल्क के अंदर मर के 5-6-7% के करीब होगी. So there's a huge storage gap, जिसकी वजह से किसान अपनी कमोडिटी स्टोर नहीं कर सकता प्रॉपर्ली. उसको औने पौने दाम उनको बेचनी पड़ती है जिनके पास ये कैपेसिटी है कि वो स्टोर कर सकें, जैसे भी करें. So I think if we create a network of accredited warehouses and we get the farmers the right price for their harvest and their hard work, it'll make a huge impact in their lives. अभी बेचारा एक तो कीमत उसको कम मिलती है, फिर वो कर्जा लेता है आड़तियों से, वो कर्जा 70-80-90% इंटरेस्ट के ऊपर होता है जो नज़र नहीं आता किसान को. फिर जो कीमत आड़ती उसे देता है उसको लेनी पड़ती है. जो छोटे
फार्मर्स हैं सब्जियों में फलों में फॉर एग्जांपल 6% कमीशन देते हैं। 100 रुपये की चीज़ बेचते हैं, 6 रुपये आपको कमीशन में देनी पड़ती है, 1% आपको कोई मुंशियाना देना पड़ता है, पल्लेदारों को पैसे देने पड़ते हैं। फिर आपके साथ कई दफ़ा फ्रॉड होता है, ग्रेन बेच रहे हैं तो आड़तियों के थड़ों के अंदर ना बड़े डीप ग्रूव्स होते हैं, तो आप जो दड़े लगाते हैं तो गंदम जब उठाते हैं तो बहुत सारी गंदम पीछे रह जाती है, फिर आड़ती उसको इकट्ठा करते हैं झाड़ू से, फिर वो शाम को बिकती है, राइट। सो इस तरह के बहुत इनफिशेंसीज हैं इसमें, पर बहुत सारा ग्रेन, बहुत सारी सब्जी, बहुत सारा फल आपका ज़ाया हो जाता है, अप टू 30-35%। हार्ड ग्रेन आपका हमारे मुल्क में 13 से 16% ज़ाया होता है। सो जस्ट इमेजिन, इसकी तकरीबन 10 अरब के करीब वैल्यू बनती है, 10 खरब नहीं, 50 मिलियन टन इज़ 50 बिलियन kg। सो 50 बिलियन मल्टीप्लाइड बाय ऑन एवरेज 100 रुपये भी लगा रहे हैं, सो 5 ट्रिलियन के करीब बनता है। सो 5 से, और आई थिंक एक्चुअल नंबर इज क्लोज टू 10 ट्रिलियन। सो इस 10 ट्रिलियन की ट्रेड में tens of billions of dollars. हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, Oh wow. हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। सो ये वेस्टेज में जाता है या इंटरमीडिएशन कॉस्ट जाता है। सो जस्ट इमेजिन इफ ऑल ऑफ दैट मनी कैन बी पुट इन द हैंड्स ऑफ the farmers and the consumers, जो end consumer है उस commodity के, तो imagine the kind of difference it would make. Yeah. It's a huge opportunity, and PMX is a great platform to at least. If you have the ability to store all that, you probably can plan it better, where you don't have to import things at a high price in an emergency. Yeah, absolutely. Wow. So this is the legacy that you will be proud of leaving. If I hope so, if I'm allowed to do what I want. PMX, is just like any other corporation. It has a huge board. I think 11 लोगों का board है वहाँ पे। wow. फिर board members, हर company के हर board member के अपना vision होती है, अपने तरीके से वो चलाना चाहते हैं। So it's not easy to, of course, manage boards and large companies. So देखें कैसा रहता है। Amazing. Before we end, आपने कहा आपको शायरी का शौक है। What's your favorite passage or whatever that if you like to share? So शायरी सुनने का भी शौक है। I like फराज, I like गालिब, I like इकबाल, जो सारे लोगों को होगा। और कुछ शायरी मैं खुद करता भी हूँ। मेरी जनरली शायरी फनी नेचर की होती है। तो आपको एक नज़म सुनाता हूँ आलू के पराठों। भाई वाह। So this I wrote. I love food, so you can imagine, नज़म सुनेंगे आपको पता चलेगा how much I love food, right? And hence the debate that I was having with Maria before coming here, कि खाने में मेन्यू में क्या है। तो ये US में मैंने लिखी थी, एक मेरे दोस्त की वालदा ने बुलाया था अपने घर आलू के पराठे खाने। उनको पता था कि मैं आलू के पराठे बड़े पसंद है, तो वो जब खा लिया तो उसके बाद मैंने ये नज़म सुनाई थी उनको। मौसम व बारिशों का बादल हुए छाए, तो याद पराठों की दिल को मेरे सताए। हो काम से भी फुरगत, ना चोर्स कोई पेंडिंग, आटे और आलूओं पर करके ज़रा स्पेंडिंग। कोई तो मेहरबान हो जो घर हमें बुलाए, और आलूओं के पराठे जी भर हमें खिलाए। एक वो भी टाइम था जब थी माँ करीब होती, क्या आज खाओगे तुम, हमें पूछ पकती रोटी। गर दिल में चाह होती और इशारा बदर भी, पाँव पकड़ के उसके कहते उसे मदर जी। आज पराठा पटेटो हमें जितने चाहे दे दो, बाद और भी जमे कर चटनी हो साथ में तो। क्या बात है। बस इतनी सी काविशों पर थी चाह पूरी होती, और खाने को हमको मिलती थी आलू भरी रोटी। आज फिर इन दिनों की ताज़ा हुई हैं यादें, एक माँ के हाथों के आलू भरे पराठे अभी कुछ ही देर पहले बैठे हैं सारे खा के। तारीफ़ क्या करूँ मैं, है पेट जिनसे फिल्ड अप, पकते थे जो किचन में करते थे भूख बिल्ड अप। जब सामने पड़े थे लगते थे कितने प्यारे, खुशबू ने जालिमों की मेरे दिल पे तीर मारे। जाहिर नहीं बातें भी ब्यूटीफुल आई वुड से, थी आलूओं की पीठी परफेक्ट इन एवरी वे। वाओ। रुखसार पर रोटी के पकते जो पड़े छाले, किसी गुल बदन के तिल को वो शर्म से मार डाले। क्या कहना। गरजान इनमें होती, चक्कर कोई चलाता, पराठे को मैं अपनी पराठी कोई मिलाता। मैरिज को फिर इनकी कॉन्ज्यूमेट कराता, बच्चे 1000 होते मैं रोज उनको खाता। वेरी ग्राफिकल, वेरी इंटरेस्टिंग। सब आपको एहसास हो गया होगा मुझे खाने से कितनी मोहब्बत है। वो महबूबाओं पे शायरी करते हैं,
और मैं खाने के ऊपर करता हूँ. Whatever you love, whatever. Makes sense. Amazing. Thank you so much, everyone. I think हम 1 घंटे का मार्क तो क्रॉस कर गए, but it was very good conversation, at least as far as I'm concerned. So before we end, it's a privilege of a lifetime to be who you are, find out who you are, and be unapologetic about that. And see you again in next Majlis.